Adab and welcome, friends. Welcome to this evening of poetry and rags that are part of the traditions of Muharram as they emerged only in the fertile soil of Awadh. This tradition commemorates the tragedy of Karbala that took place over 1400 years ago. What was this battle of Karbala? A battle between good and evil, between truth and falsehood, between a tiny band of 72 men, women, and children led by the Prophet's grandson, Imam Hussein, against the vast armies of a tyrant, Yazid, the second Khalifa of the Umayyad dynasty. Imam Hussein refused to bow to Yazid's supremacy, for that would have been a complete betrayal of everything that his father, Hazrat Ali, and his grandfather, Prophet Muhammad, had stood for. In the battle that followed, Hussein was martyred, along with all other male members of the family, barring one son who was too sick to have even entered the battle. This was an act of supreme sacrifice because Imam Hussein knew this inevitable end, and yet he would not bow to tyranny. So this martyrdom became a symbol, a metaphor, not just of valor, but of moral power, of upholding truth, justice, and integrity, even when faced with certain death. Before a more detailed introduction about what to expect over this hour and a half that we share with you, we thought we would just set the tone and begin. And we want to begin with one soz. This soz is about rukhsat, about judai, about leaving your watan, your people. In this soz, Imam Hussein is leaving his watan, Medina, for Karbala. हुसैन यूं हुए ए मुजरई वतन से जुदा कि जैसे बुलबुले नाशाद हो चमन से जुदा. Just like the unhappy bulbul forced to leave its garden. A soz based on rag Jhinjhoti. वतन से जुदा हुसैन यूं होवे ए मुझे वतन से जुदा के जैसे बुलबुले नाशाद हो चमन
से जुदा के जैसे बुलबुले नाशाद हो चमन से जुदा वतन में फिर के सफर से न जीते जी आए वतन में फिर के सफर से न जीते जी आए अजब घड़ी थी के अकबर हुए बहन से जुदा के जैसे बुलबुले नाशाद हो चमन से जुदा सकीना मर गई कैदे सितम में घुट घुट कर सकीना मर गई कैदे सितम में घुट घुट कर अरे मगर ना चांद सी गर्दन हुई रसन से जुदा के जैसे बुलबुले नाशाद हो चमन से जुदा फिशारे कब्र का गर खौफ है तुझे तो अनीस फिशारे कब्र का गर खौफ है तुझे तो अनीस रहे ना सुर्रक़ा के शिफा कफन से जुदा के जैसे बुलबुले नाशाद हो चमन से जुदा हुसैन यूं होवे दोस्तों, मरसिया, सोज, salam, noha. These are all poetic forms that emerged uniquely in India around Muharram. And recitation of these forms during Muharram is part of many family traditions. Our home
in the Qasbah of Mustafabad in Raebareli is one of them. It is a glimpse of these local traditions that we seek to share with you today. And we dedicate this evening to Amma Jan, Atiya Naqvi, my grandmother and a proud custodian of this tradition until she left us in 2012. She was a feminist. She was also a traditionalist, largely homeschooled, but both highly literate and extremely erudite. And my God, she recited Marsiyas with such great passion till the very, very end. Those reciting today, you just heard one of them, they are all part of this family's tradition. And they have all learnt by performing before the critical eyes of their elders from a very, very early age. So as they recite before all of you today, in the backdrop you will see just one image as they recite every year in our family home. The language you will hear in today's recitations is Awadh's own language, our language, Awadhi, Hindustani or Khadi Boli, Urdu, Farsi, all flowing one into the other like the wondrous traditions of this country everywhere. And that is also why we wanted this evening, to remind ourselves of the amazing cultures of poetry and art that transcend boundaries of language and community and religion and bind us all. As to what to expect this evening, we started with one soz. We will have several more sozes. We will also have salams. And of course, we will have the crowning glory of a traditional majlis, the marsiya as well. If clapping does not feel quite right, then a wahwah or a subhanallah, which is very much a common refrain in a traditional majlis, it would encourage the performers. So please, feel free, if your heart so says, to do a wahwah or a subhanallah. We'll come to the next soz. May I request everyone before we start to please turn off their mobile phones? Thank you. In the next soz, Imam Hussain is now headed for the final stand of his moral battle, and he stands alone. All the others are gone. Words are, Hussain jab ke chale baade dopahar ran ko, koi na tha jo sambhale rakabe tausan ko. What does this mean? Jab Hussain dopahar ke baad maidane jang ki taraf chale, you normally see a rider being helped into a stirrup and onto a horse. Lekin yahan koi na tha jo sambhale. Rakab is the stirrup and tausan is the noble steed or the horse. Koi na tha jo sambhale rakabe tausan ko. And later on the poet says, na asra tha koi Shah-e Karbalai ko. The Shahenshah of Karbala, Imam Hussain, had no one left to help him. Na asra tha koi Shah-e Karbalai ko, fakat behan ne kiya tha sawar bhai ko. A soz based on Rag Des.
चले बाद तो पहरन को कोई न था। जो संभाले रकाबे तो सन को कोई ना था। जो संभाले रकाबे तो सन को हाय सकीना झाड़ रही थी। हाय सकीना झाड़ रही थी। अबा के दामन को हुसैन चुपके खड़े थे। झुकाए गर्दन को हुसैन चुपके खड़े थे। झुकाए गर्दन को नासरा था कोई ना आसरा। आसरा था कोई और शाह करबला को फकत बहन ने फकत बहन ने किया था सवार भाई को हुसैन जब के चले। Next, we bring you a salam. Soz, as you've just heard, short compositions set to rags. Similar to salam, but a salam's tenor is more in the nature of a salutation to honor someone to whom it is being recited. This salam is a salutation to the martyrs of Karbala. The words, Garohe chak gariban salam karta hai. A group of mourners, gariban chak karke, with torn, rent front garments in disheveled clothing, recalls the sufferings of the martyrs and pays tribute to them one by one. It's a composition by the well-known Urdu shair Mir Taqi Mir.
मुशाफर महशर, वो जिसका कर दिया ताराज करबला में घर, मुसीबतों की हदें खत्म हो गईं जिस पर गरोहे चाक गरिमां सलाम करता है ना माँ का दूध ना पानी मिला जिसे वो सगीर, वो जिसको देख के टुकड़े जिगर हो वो बेशीर, वो जिसको ले गए मैदान में हजरत शबीर, वो जिसका नन्हा गला और हुरमुला का तीर गरोहे चाक गरिबां सलाम करता है। वही जो थे शहे करबो बला के दिल का चैन, वो कम सिनी में जिन्हें मौत आई वाए हुसैन, था जिनकी मौत से खैमे में एक शोरो शैन, वो यानी ज़ैनब आली नसब के नूरेन, गरोहे चाक गरिबां सलाम करता है। जो क़ुव्वत दिले लैला था खूबरू वो जवान, वो जिसको देख के होता था मुस्तफा का गुमान, वो जिसने जवानी में खाई दिल पे सिना, वो जिसके ब्याह का मादर को रह
This next source has little to do with the Battle of Karbala. But oral traditions are not always so logical. And actually, any moment in the life of the Prophet's family is an acceptable subject for a Muharram recitation. This source has been a staple in our family's Muharram. It is about Fatima, mother of Hazrat Ali. The imagery is that she is about to deliver her son, and she is near Kaaba in Makkah. And she is looking for a way to enter the holy sanctum, the house of God. The words are, हैरान है फातिमा कि हरम में किधर से आए? How shall I enter? दीवार कह रही है, बीबी इधर से आए. The walls are saying, बीबी come from anywhere. गैरों को है ये हुक्म, आए तो दर से आए. Only outsiders are bound only to enter the holy sanctum by the door. गैरों को है ये हुक्म, आए तो दर से आए. ये इनके घर की बात है, चाहे जिधर से आए. ये सोज राग गौड़ सारंग पर आधारित है.
Subhanallah. The next source is about the tragedy of Qasim. Who is Qasim? He is Imam Hussein's nephew. And he is married during the brief period that the family pitches tent in Karbala. And shortly after that, he heads towards battle. This source captures the tragedy of a young man, जो दूल्हा अभी बना है, सहरे के फूल सूखे नहीं हैं, and he is walking towards a certain death. The source speaks of Qasim's bravery, and the poet brings out a particular poignancy by likening moments of Qasim's death to the imagery of a sehra. इस सोज में the language is Awadhi. It is based on Rag Des, and the words are तलवारन से तन चूर भयो और पाग के पेच गिरे कट के और मुखड़े पर लहरावत हैं, सब लोग कहें सहरा लटके. कासिम जी घमसान कियो रनमा डटके जब जूझन को गयो कासिम जी घमसान कियो रनमा डटके और बैरी मार भगा दियो पग पाछे धर्यो ना जरा हटके भगा दियो पग पाछे धर्यो न जरा हटके तलवारन से तन चूर भयो तलवारन से तन चूर भयो पाग के पेच गिरे कटके और मुखड़े पर लहरावत हैं, सब लोग कहें सहरा लटके जब जूझन को गयो The next recitation is a salam. तू अपने एक जाम पे नाजा है साकिया, 14 पिलाने वाले हैं परवाह है मुझको क्या. A tavern, a place of drink, and saki in English is literally bartender. And the word is used as a metaphor in much of Urdu poetry, in Sufi poetry, for lovers, for friends, and even for the Almighty God. This salam says, you are pleased with your one drink in one tavern. I have 14 springs from where I can drink. I have Rasul.
I have Fatima, I have my 12 Imams. And the salam then goes on to name the holy shrines. Kazme, Samra, Karbala, Najaf, and so on. A salam based on Rag Mishra Khammaj. परवाह है मुझको क्या, बतलाए देता हूँ तुझे मैं खानों का पता बतलाए देता हूँ तुझे मैं खानों का पता बदहाओ काज़ मैनो खुरासानो सामरा खुर्शीदे मुद्दा मेरा बुर्जे शरफ में है एक करबला में एक मेरा साक़ी नजफ में है तू अपने एक जान Before some more Soos recitations and a Noha recitation, it is now time for the magic of the Marsiya. Of all the forms that you will hear today, it is the Urdu Marsiya that occupies pride of place. From short lyrical poems, the Marsiya in the late 18th and 19th century evolved into long narrative poems, into elegies that describe the build-up to the Battle of Karbala,
the events before, during, and after, the relationships between people, the suffering, the loss. Many poets have composed marsiyas, including some very well-known ones, Josh Malihabadi, Faiz Ahmad Faiz. And there are those who are known largely for their skill in marsiya composition, like Mirza Dabir. But the poet we will largely celebrate today was the favorite marsiya go in our home in Mustafabad, Mir Anis. For it is in Mir Anis's language, so infused with the mitti of Awadh. The characters may be drawn from a religious ethos, as indeed they are from the Prophet's family. But in their language, their dress, their customs, their language, their speech, the expression of emotions, they remain quintessentially Avdi. Marsiya is written in Musaddas, 6-line stanzas called bands. The first 4 are in a rhyming quatrain, and the last 2 are in a different rhythm. Now, a classical Urdu marsiya over time has come to have distinct sections, and they follow an order. Today's recitation does not follow any set order. What we seek to do is simply give you a little glimpse of different moods and different moments. Ladies and gentlemen, Urdu marsiye ki ek jhalak. आदाब। मरसिया पढ़ने से पहले अक्सर एक रस्म ये भी थी कि एक आध रुबाई वार्म अप करने के लिए पढ़ी जाती थी। एक रुबाई पेश करता हूं। सीने पे मेरे नक्शे कदम किसका है? जोश मलिहाबादी। सीने पे मेरे नक्शे कदम किसका है? रिंदी में, इनेब्रिएशन में, सीने पर मेरे नक्शे कदम किसका है? रिंदी में ये इजलाल व हशम किसका है? जाहिद तू मेरे हाथ के सागर को न देख, ये देख मेरे सर पे अलम किसका है? अनीस, मेरे ख्याल में इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए कि उर्दू के 4 अगर बड़े शायर गिने जाएं, मीर अनीस, मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर, नज़ीर अकबर आबादी, तो उस पैंथियन का ये शायर है। मीर अनीस ने गज़लें भी लिखी, बड़ी खूबसूरत रुबाइयाँ लिखी, लेकिन his forte was मरसिया। जैसे गालिब ने मरसिया लिखने की कोशिश की और फिर 2 बंद लिखने के बाद छोड़ दिया, कहा भाई ये मेरा नहीं है, ये मीर अनीस, उनके वंशजों का काम है। अनीस के सामने सबसे पहला मरहला ये है कि वो रसूल के खानदान के बारे में लिखने जा रहा है। मैं अदना शायर, वो कहता है अपने आप को, मैं इस टास्क तक कैसे पहुंचूंगा? या रब, दुआ करता है, या रब चमने नज़्म को गुलजारे रम कर। ऐ खुदा, ओ गॉड, impart to the garden of poetry the splendor of the garden of Eden. कहां पिच कर रखा है? या रब चमने नज़्म को गुलजारे रम कर, ऐ अब्रे करम खुश्क ज़रात पे करम कर। तू फैज़ का मबदा है, यू आर द फाउंटेन ऑफ जेनरॉसिटी, तू फैज़ का मबदा है। तवज्जो कोई दम कर और गुमनाम को
एजाज बयानों में रकम कर। और जब तक ये चमक महर के परतों से न जाए सूरज की चमक, जब तक ये चमक महर के परतों से न जाए अकली में कलम मेरे कलम रो से, ये चमक मेरे कलम में रहे। और गव्वा से तबीयत को अता कर वो लुआली। गव्वास कहते हैं पर्ल डाइवर को, तबीयत के पर्ल डाइवर को वो नग ऐसे ऐसे नगेट्स दे। गव्वा से तबीयत को अता कर वो लुआली, हो जिसकी जगह ताजे सरे अर्श पे खाली। एक एक लड़ी नज़्मे सुरैया मिल्की वे, एक एक लड़ी नज़्मे सुरैया से हो आली। और आलम की निगाहों में गिरे कुतबे शुमाली। तो पोलर स्टार जो कि वाकई में गिरता है, आलम की निगाहों से गिरे कुतबे शुमाली। सब हों दुरे यकता, ये सब इनमें सब हों दुरे यकता, ना इलाका हो किसी में, यानी कोई झगड़ा ना हो, बिल्कुल कंपोजिशन परफेक्ट होना चाहिए। सब हों दुरे यकता, ना इलाका हो किसी में। ये नजर हैं उनकी जिन्हें रिश्ता है नबी से। और जब दुआ कबूल हो जाती है तो शायर खुदा हो जाता है, क्रिएटिविटी का फाउंट बन जाता है। और फिर वो अपनी तारीफ करता है कि हां अब मैं हूं इस काबिल। नमके ख्वाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, द सॉल्ट ऑफ द बैंक्वेट ऑफ क्लैरिटी मेरी फसाहत है। नमके दस्तरख्वान, नमके ख्वाने तकल्लुम है फसाहत मेरी। नातके बंद हैं सुन सुन के बलागत मेरी, इतना बलीग हूं कि सुन सुन के बला रंग उड़ते हैं वो रंगी है इबारत मेरी। अब रंग उड़ने के दो मानी हैं। एक तो ये कि शहर लखनऊ में कंपटीशन था, उधर दबीर के लोग थे, इधर अनीस के लोग थे। अब वो क्या रंग उड़ते हैं वो रंगी है इबारत मेरी, अब उनके लोगों के रंग उड़ते हैं। वरना यह है कि रंग उड़ते हैं वो रंगी है इबारत मेरी। और शोर जिसका है वो दरिया है तबीयत मेरी। उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, भाई पांचवी पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। एक कतरे को जो दूं बस्त तो कुलजुम कर दूं, एक कतरे को अगर मैं खींचूं तो मैं उसका समंदर बना दूं। एक कतरे को जो दूं बस्त तो कुलजुम कर दूं। और बहरे मवाजे फसाहत का तला तुम कर दूं। माह को मेहर करूं, जर्रे को अंजुम कर दूं। और गुंग को माहिरे अंदाजे तकल्लुम कर दूं। गूंगे को मैं कॉन्वर्सेशन के आर्ट का बादशाह बना दूं। गुंग को माहिरे अंदाजे तकल्लुम कर दूं। भाई दर्द सर होता है, दर्द सर होता है, बेरंग न फरियाद करें बुलबुलें, मुझसे गुलिस्तां का सबक याद करें। दर्द सर होता है, बेरंग न फरियाद करें बुलबुलें, मुझसे गुलिस्तां का सबक। है कजी ऐब, है कजी ऐब, किसी चीज का टेढ़ा होना बुरा होता है, मगर है कजी ऐब मगर हुस्न है अबरू के लिए। सुरमा ज़ेबा है फ़कत नरगिसे जादू के लिए।
ज़ेब है खालिसिया काला तिल, ज़ेब है खालिसिया चेहरे गुल रू के लिए। तीरगी बद है, अंधेरा बुरा है, तीरगी बद है मगर नेक है गेसू के लिए। और दानद उनकस के फसाहत बकला में दारद, हर सुखन मौका हर नुक्ता मकाम दारद। हर पॉइंट पे हर बात जो हो वो अपने बिल्कुल मतलब की और बिल्कुल सही जगह पे जड़ी हुई हो। ये अनीस का एक रुख है और बहुत छोटा सा रुख है ये अनीस का। अनीस सिंप्लिसिटी का शायर है। ये ग्रैंडियर जो है वो अपने आप को इस वक्त इस मूड में है वो, लेकिन सादगी, सिंप्लिसिटी, हमारे यहाँ कहा जाता था कि मिर्ज़ा दबीर का मिसरा है, ज़ेरे कदमे वालिदा फिरदौस से बरी है। ये दबीर हुए और मीर अनीस ने वही बात कही है, सुनते हैं माँ के पाँव के नीचे बेहिश्त है। ये सादगी के साथ एक अच्छा मरसिए का तरीका ये था कि एक मरसिया 50 बंद, 100 बंद, अब 100 बंद का मतलब सेस्टेक 4 और 2, तो 100 बंद का मतलब 600 पंक्तियां, तो वो घंटों का प्रोग्राम है। मैं ऐसा करता हूं, अगर आप इजाजत दें तो, मरसिए के एक मरसिए का थोड़ा सा टुकड़ा और बाकी बतौर नमूना जो यानी मैं आपको एक मार्केटिंग करूं अनीस की आपके साथ। किस्सा यह है, मस्जिद के पास मकान है रसूल का, उसी में उनकी बेटी फातिमा और उनके नवासे हसन बड़े हैं, हुसैन, ज़ैनब, सब वहीं रहते हैं। करीब मस्जिद है, मस्जिद में जाके मदीने में वहाँ ये सरमन देते हैं। ये स्टेज है अनीस का इस वक्त। मसरूफ़े वाज़ो पंद थे सुल्ताने मशरिक़ैन। रसूल मुखातिब कर रहे थे मस्जिद में कुछ लोगों को। मसरूफ़े वाज़ो पंद थे सुल्ताने मशरिक़ैन, जो घर से निकले खेलते ज़हरा के नूर ऐन। 7-8 बरस के हसन हुसैन जो घर से निकले खेलते ज़हरा के नूर ऐन। बढ़ जाते थे हसन कभी आगे कभी हुसैन, नाना बगैर दोनों नवासों को था न चैन। कहते थे देखें जल्द कदम कौन उठाता है, नाना के पास पहले भला कौन जाता है। और मस्जिद में आए जब वो गुलबदन, खुशबू से सहने जामा हुई चमन, और खुश होके मुस्कुराने लगे सरवरे ज़मन। अब देखिए, अब बच्चे सरमन दे रहे हैं, आ गए एकदम से। बच्चों को था अली का इशारा कि बैठ जाओ, लाजिम नहीं कि वाज में नाना को तुम सिताओ। फैला के हाथ बोले मोहम्मद कि आओ आओ। शब्बीर जो छोटे हैं हुसैन, शब्बीर ने कहा हमें पहले गले लगाओ। भाई हसन जो आपकी गोदी में आएंगे हम तुमसे नाना जान अभी रूठ जाएंगे। बोले हसन कि वाह करें और हमें ना प्यार। इकरार कर चुके हैं शहंशाह करदिगार। तो अब हुसैन कहते हैं अच्छा देखते हैं देखते हैं कांधे पे कौन होता है पहले सवार। तो रसूल देख रहे हैं ये सिबलिंग राइवलरी। उन्होंने एक को इधर बिठा लिया और एक को इधर जानू पे बिठा लिया और झुक झुक के
चूमने लगे, झुक झुक के पहले झुक एक का गला चूमा और एक का दहन। ये अब इसमें सिचुएशन क्या है कि इल्हाम है, वो रसूल हैं, उनको इल्हाम हो गया है कि भाई एक को जहर मिलेगा और एक का गला काटा जाएगा करबला में। तो शब्बीर चाहते थे कि चूमे, एक का गला चूम रहे हैं और एक का दहन। शब्बीर चाहते थे कि चूमे मेरे भी लब, पर कुछ गले के बोसों का खुलता न था सबब। नाना के मुंह के पास जो लाते थे मुंह को, जब झुक झुक के चूमते थे गला सैयद अरब। भाई हसन ये देख के जो मुस्कुराते थे, अब उसको वो जीत रहा है हसन बड़ा वाला, भाई हसन जो देख के ये मुस्कुराते थे, गैरत से इनकी आंखों में आंसू भर आते थे। उठे हुसैन जानुए अहमद से खशमगीन, नाराज होके उठ गए। उठे हुसैन जानुए अहमद से खशमगीन, गुस्से से चेहरा जर्द और आंखों पे आस्तीं। रुख पर पसीना जिस्म में राशा, जबी पच्ची। पूछा कहाँ चले, तो ये बोले कहीं नहीं, घर में अकेले त्योरी चढ़ाए चले गए। अब देखिए वहां आंखों पे आस्ती हैं, घर में अकेले त्योरी चढ़ाए चले गए, देखा न फिर कि सर को झुकाए चले गए। और बैतुल शरफ में आए जो शब्बीर नामदार, कुर्ते को मुंह पे रख के लगे रोने जार जार। फैला के हाथ दौड़िए जहरा जिगर फिगार, है हुसैन क्या हुआ, तू क्यों है अशबार। तुझको रुला के गम में मुझे मुब्तला किया, कुर्बान जाऊं मैं तुझे किसने खफा किया। निकले थे साथ और जुदा हो के आए हो, समझी मैं कुछ हसन से खफा हो के आए हो। और ये रोते चले जा रहे हैं। मेरा कलेजा फटता है, ऐ महलका न रो, मत रो हुसैन, बराए खुदा न रो। अरे मेरी तरफ तो देख, मेरी तरफ तो देख कि बेताब होती हूं, चादर से मुंह को ढांप के लो मैं भी रोती हूं। अब किस माँ ने ये ट्रिक नहीं चली है बच्चे को बहलाने के लिए, चादर से मुंह को ढांप के लो मैं भी रोती। बोले हुसैन हम तो हैं इस बात पर खफा, नाना ने चूमे भाई के लब और मेरा गला, तुम अम्मा जान मुंह को तो सूंघो मेरे जरा, कुछ बुए नागवार है मेरे दहन में क्या। भाई के लब से अपने लबों को मिलाते हैं, अब हम न जाएंगे हमें नाना रुलाते हैं। सुनते ही ओढ़ ली रुखे पुरनूर पर रिदा, जनाब फातिमा ने कि ये क्या है। वो सुनते ही ओढ़ ली रुखे पुरनूर पर रिदा, और मोजे पहन के गोद में शब्बीर को लिया। देवड़ी तक गई न थी मुस्तफ़ा, दिलबंदे मुस्तफ़ा, फिजा ने जाके बूजरो सलमा को दी सदा। भाई पेशे नबी हुसैन को गोदी में लाती हैं, हट जाओ सब के फातिमा मस्जिद में आती हैं। अब औरत का एक मिसरा है बस, कि पोजीशन क्या थी। जैसे ही आई ताजी में अल्लाह रे आमद आमद जहरा का बंदोबस्त, ताजी में फातिमा को उठे सैयदुल बशर। ये है। फिर ये ड्रामा चलता है और कि भाई ये आपने क्यों किया, फिर रसूल बच्चों के सामने नहीं बताते हैं वगैरह वगैरह। ऑब्वियस कहानी, ये एक मूड है, यानी इसका बिल्कुल रजस के बंद जब लिखता है मसलन, उस जमाने में सिंगल कॉम्बैट हुआ करता था। अब सिंगल कॉम्बैट में प्रोपेगेंडे की जरूरत होती थी। वो ये कि मैं फला हूं, मैं उनकी औलाद हूं,
मेरी तलवार के बारे में सब जानते हैं इस एरिया के, मैं कौन हूं, तो डिमोरलाइज करना एक ये तरीका था। एक एक करके हुसैन और जनाब ज़ैनब, बिल्कुल उनकी बहन, बिल्कुल क्लियर थे कि जंग नहीं होना चाहिए किसी तरह से। वो कहती थी कोई भी सुलह की सूरत हो कल चलो, अगर आज कोई सुलह की सूरत हो कल चलो, इन आफतों को भाई को लेकर निकल चलो, ये अब्बास से कह रही वो। लेकिन कॉम्प्रोमाइज प्रिंसिपल पे नहीं होगा भाई। हम जाते हैं, तुम जो चीज़ करो, हम उधर चले जाएंगे, हम हिंदुस्तान चले जाएंगे, लेकिन ये कि हम तुम्हारे रूल को इंडोर्स करें, तो उसको लेजिटिमेसी चाहिए हमारा, ना भाई ना। एक एक करके जंग शुरू होती है। अब सब जा रहे हैं। अब्बास जिनको कि अलम दिया है जनाब ज़ैनब ने, भाई ने ज़ैनब से पूछा कि इसको अलम मिलना चाहिए, अलम इज दी एम्बलम ऑफ हुसैन आर्मी। वो लेके निकलते हैं। देखिए, 2-3 तरह की जंग के डिस्क्रिप्शंस हैं। ये जिक्र था कि बजने लगा तबल उस तरफ। अब ये कुरोसोवा के वॉर सीन को स्केच कर रहा है तकरीबन अनीस। ये जिक्र था कि बजने लगा तबल उस तरफ, और मुश्किल कुशा की फौज ने बांधी इधर भी सफ। इधर भी सफ, तीरों ने रुख किया सुए इब्ने शह नजफ, और सीनों को गाजियों ने उधर कर दिया हदफ। था बस के शौक़ जंग हर एक रश के माह को, जोश आ गया वगा का हुसैनी। ये जिक्र था कि फौज मुखालिफ से तीर आए, नेज़े बढ़ा के शेर के मुंह पर शरीर आए। ये भी झपट के, अब घोड़ों पे हैं, ये भी झपट के मिसले शहे किला गिर आए। भाई गेत, अब यह अनीस की फेत है। गेती हिली, जमीन हिली, गजब में जनाबे अमीर आए। हजरत अब्बास हजरत अली के बेटे हैं, उतने ही ब्रेव हैं। गेती हिली, गजब में जनाबे अमीर आए। अब मैं एक कॉन्ट्रास्ट के तौर पे ये बंद आपके सामने पेश कर रहा हूं, जंग का सिंगल कॉम्बैट एग्जैजरेशन। पहुंचे जो दश्ते की में उड़ाते हुए फरस, घोड़े को कहते हैं, पहुंचे जो दश्ते की में उड़ाते हुए फरस, और घोड़े को हाथ उठा के ये आवाज दी कि बस। और देखी सफ़े जमी जो चपो रासो पेशो पस, नारा किया कि नहर पे जाने की है हवस। अब इंटिमिडेट करना है, रोकेगा जो वो मौत के पंजे में आएगा। भाई हट जाओ सब कि शेर तराई में जाएगा। अरे तुम क्या पहाड़ बीच में गर हो तो टाल दें, तुम क्या पहाड़ बीच में गर हो तो टाल दें। शेरों को हम तराई के बाहर निकाल दें, मोहलत न एकदम पे जंगो जदाल दें। अरे पानी तो क्या है, आग में घोड़े को डाल दें। मुंह देखते रहें जो निगहबां घाट के, ले आए घर में तेज से दरिया को काट के। ये एक मूड है कि ले आए घर में तेज से दरिया को काट के। अब जंग में अनीस कई चीजें एम्प्लॉय करता है। ड्रामे में एक सिचुएशन, एक चीज होती है ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी का मतलब ये है कि ऑडियंस को मालूम है कि स्टेज पे क्या हो रहा है, लेकिन स्टेज पे जो दो प्रोटैगनिस्ट्स हैं उनको नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है, और इससे जो एक ड्रामा पैदा होता है। अब अनीस, दिस इज अ वन मैन शो फॉर अनीस। सिचुएशन ये है कि
बहुत ही अजीज फूफी हैं अली अकबर की। अली अकबर इमाम हुसैन के बड़े बेटे हैं, 18 साल की उम्र है, सबसे इजाज़त लेके जंग पे गए हैं। इनको किसी से कहीं खबर मिली है कि अली अकबर जंग पे चले गए इनसे पूछे बगैर। यह है सिचुएशन। और अली अकबर हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, इजाज़त लेने आए हैं। दिस इज द ड्रामेटिक सिचुएशन फॉर द ऑडियंस दैट अनीस क्रिएट्स। अब वो शिकायत कर रही हैं औरतों से कि देखो, बचपना याद कर रही हैं अली अकबर का। कंघी किसी के हाथ की भाती न थी कभी। कंघी किसी के हाथ की भाती, जब छोटे थे ये, कंघी किसी के हाथ की भाती न थी कभी। बे मेरे लेटे नींद इन्हें आती न थी कभी। बे इनके माँ की कब्र पे जाती न थी कभी। और रोए पिसर पर इनको रुलाती न थी कभी। अरे मेरे सिवा किसी को कभी जानते न थे, जो थी सो मैं थी, माँ को तो पहचानते न थे। जो थी, अब ये भी रिश्ते आप लोग समझते होंगे, ये भी जो थी सो मैं थी, माँ को तो पहचानते न थी। वो दोनों मरने वाले, उनके दोनों बेटे, वो दोनों मरने वाले तो पहलू में होते थे और फैला के पांव ये मेरी छाती पे सोते थे। फिर अली अकबर कहते हैं कि मैं आपसे इजाज़त लेने आया हूँ। ये ड्रामा यूं ख़त्म होता है। एक और सिचुएशन है बिल्कुल ऐसी ही। ये है कि जंग ना होना चाहिए, लेकिन अगर हो गई है तो फिर इस तरह से हो, इसमें हमारे बच्चे क्यों नहीं गए अभी तक? लाशें अभी शहजादों के आल हैं तो ये जाएं। शिकायत है जनाब ज़ैनब को। अब वो दोनों औन मोहम्मद खड़े हुए हैं कि हम चले, और उनको ये शिकायत है कि ये जा नहीं रहे हैं। मैं समझी थी पहले ही ये ढूंढेंगे बहाना, कुछ मुंह का निवाला नहीं तलवारों का खाना, कह रही। फिर शिकायत है कि माँ को तो सुबुक कर चुके कुंबे की नजर में। सुबुक करना इज कम करना, एम्बैरस करना। माँ को तो सुबुक कर चुके कुंबे की नजर में, मैं लुट गई इस रंजो मुसीबत के सफर में। पूछे कोई इनसे कि ये क्यों आए हैं घर में, खोले उन्हें बांधे जो हैं हथियार कमर में। फौजों में यही तौर थे खालिक के वली के, और लो नाज है इस पर के नवासे हैं अली के। और वो सिचुएशन जैसे मैंने कहा दूसरी थी। अनीस के यहां एक तो इक्वेस्ट्रियन बड़ा अच्छा, कोई डिटेल, ये बड़े जितने भी पुराने उस्ताद थे अगर मौसीकी की बात करते थे तो वो मौसीकी जानते थे, और अगर घोड़े का तस्करा किया तो बेचैन हो गए फरसे अबलक व सुरंग। अब अबलक व सुरंग अरब के बहुत ही खास नस्तालीक घोड़ों की नस्लें हैं, वो सब डिटेल हैं। और ऐसे स्टडी किया है साहब कि हमारे मरहूम दोस्त M.F. हुसैन, मारा दयार गैर में मुझको वतन से दूर कर ली मेरे खुदा ने, रख ली मेरे खुदा ने मेरी बेकसी की शर्म, बाहर मर गया गरीब। बहरहाल उन पहले ज़माने में अगर आप लोगों को याद हो, घोड़े खींचने की बहुत बहुत शौक था हुसैन को, और एक आदत थी उनकी यूँ कोहनी ज़माना, यार वो सुनाओ वो सुनाओ। क्या अनीस के ये बंद। अब अनीस जब एक्सटेसी में हो तब तो इमाम हुसैन का घोड़ा, वो ज़ेबो ज़ैन ज़ीन की, वो ज़ेबो ज़ैन ज़ीन की, वो साज की पाबंद, ज़ेवर से जैसे होती हो आरास्ता दुल्हन। ये अब यहां है, लेकिन घोड़े की डिस्क्रिप्शन
आहू की जस्त, शेर की आमद, परी की चाल, कब के दरी खजिल, दिले ताऊस पायमाल, उस सब्जा सुबुक रवि से कदम के तले निहाल, एक दो कदम में भूल गए चौकड़ी गजाल, और राकिब ने सांस ली, इसको कहते हैं तारे नफस, जो यहां से सांस जो निकलती है और आप यूं झुक के जब घोड़ा चला रहे होते हैं तो घोड़े की गर्दन पे पड़ता है। राकिब ने सांस ली कि वो कोसों रवाना था, तारे नफस भी उसके लिए ताजियाना था, तारे नफस भी उसके लिए ताजियाना था। और वो जस्तो खेजो सुर्रतो चालाकिए सबंद, सांचे में थे ढले हुए सब उसके जोड़ बंद। सुम हौसू सुम कुर्से माहताब से रोशन हजार चंद, नाजुक मिजाजो शोखो सियाह चश्मों सर बुलंद, गर हिल गई हवा से जरा बाग उड़ गया, पुतली सवार की न फिरी थी कि मुड़ गया बिजली कभी बना। अब वो एनिमी फोर्सेस जो हैं वो कॉर्नर कर रही हैं, अब स्पेस उसकी कम हो गई है। बिजली कभी बना, कभी रहवार बन गया, आया रख तो अबरे गोहर बार बन गया, गह कुतब गाह गुम्बदे दौवार बन गया, और नुक्ता कभी बना कभी परकार बन गया। वो हैरान थे उसकी गश्त पे लोग इस हुजूम के, थोड़ी सी जामे फिरता था क्या झूम झूम के। घोड़े प्यास एक कंसिस्टेंट चीज है, थीम है इसमें, प्यास जाहिर है। 3 दिन के लिए इमाम हुसैन पे पानी बंद कर दिया गया, उनके खेमे दूर थे नहर के, यूफ्रेटिस फुरात उससे दूर थे, और 3 दिन पानी, हर तरह का प्रेशर लगाया गया कि भाई ये दस्तखत कर दें, इंडोर्स कर दें, नहीं। अब तो प्यास इज ए रनिंग थीम। 2 दिन सब घोड़े को भी प्यास लगती है। हजरत अब्बास घोड़े पे बैठे हुए हैं, 2 दिन से बेजुबां पे था जो आबो दाना बंद, दरिया को हिन हिना के लगा देखने समंद। पहुंच गए वहां, दरिया को हिन हिना के लगा देखने समंद, हर बार कांपता था, सिमटते थे बंद बंद, और चुमकारते थे हजरते अब्बासे अर्जुमंद। ओ तड़पाता था जो कल्ब को शोर आबशार का, गर्दन फिरा के देखता था मुंह सवार का, कि भाई पानी में क्यों नहीं जाने दे रहे हो मुझे। तलवार बाढ़ वो बाढ़ के बहता हुआ धारा जैसे, तलवार बाढ़ वो बाढ़ के बहता हुआ धारा जैसे, काट वो काट के दरिया का कगारा जैसे, रोशनी वो के गिरे टूट के तारा जैसे, और भाई चमक ऐसी के हसीनों का इशारा जैसे। वोलू गर्मी है, देखिए गर्मी का, और उस किस्म की गर्मी का डिस्क्रिप्शन शायरी में एक, आप लोग हजरात जो सब जानते हैं, मिल्टन का जो डिस्क्रिप्शन है हेल का, at once as far as the angels can he views the dismal situation, waste and wild, a dungeon horrible, from where no light but rather darkness visible of burning sulfur unconsumed, darkness visible, ये गर्मी। वो लू, वो आफताब की हिद्दत, वो ताब वो तब, काला था रंग धूप से दिन का मिसाल शब, खुद
नहरे अलकमा के भी सूखे हुए थे लब कगर उसकी। वो खेमे जो थे हबाबों के बबल्स, खेमे जो थे हबाबों के तपते थे थप के सब। अरे सुर्खी उड़ी थी फूलों से, सब्जी गया से, और पानी कुएं में उतरा था साए की चाह से। पानी कुएं में उतरा था साए की। The water to protect itself from the torrid sun had found shelter in the well. ये डिस्क्राइब कर रहा। ये जुबान कहाँ तक वैरायटी। सिचुएशन ये है कि हज़रत अब्बास को अलम मिल गया है। उनकी बीवी जो है वो जनाब ज़ैनब के पास आई हैं। शौहर की तरफ, शौहर की समत पहले कनखियों से की नज़र, फिर ज़ैनब के पास आई और कहा कि आपने हमारा रुतबा बढ़ा दिया। सीने से सर लगा के ज़ैनब ने फिर कहा, तू अपनी कोख मांग से ठंडी रखे खुदा, बानोए नेक नाम को, बानोए नेक नाम, बानोए नेक नाम सुहागन रखे खुदा। बच्चे जिए तरक्कीए इकबालो जा हो साए में आपके। अब वो पलट के जनाब ज़ैनब से कह रही हैं, बच्चे जिए तरक्कीए इकबालो जा हो साए में आपके, अली अकबर का ब्याह हो। अरे मेहंदी तुम्हारा लाल रचे हाथ पांव में, मेहंदी तुम्हारा लाल रचे हाथ पांव में, लाओ दुल्हन को ब्याह के तारों की छांव में। कहीं अरब दिख रहा है इसमें? लाओ दुल्हन को ब्याह के तार, बानुए नेक नाम की खेती हरी रहे, संदल से मांग बच्चों से गोदी भरी रहे। ये दुआएं हैं, ये औरतों की आपस में बात है। कोई लिमिट आप अब आजकल तो देवनागरी में मौजूद हैं अनीस, आप लोग पढ़ें साहब, बड़ा लुत्फ आएगा आपको। अनीस के बाद, अनीस से पहले यानी मुंशी चुन्नीलाल दिलगीर, अनीस से कई बरस पहले उन्होंने मरसिया कहना शुरू किया। अनीस खुद दिलदादा थे उनके कुछ अशार के, उनके कुछ बंदों के। उसके बाद फिर ये जो सिलसिला है, छोटे छोटे मरसिए लिखने वाले गांव में निकले। अरे साहब, हमारे गांव के बगल में एक रस्तोगियों का प्रोसेशन निकलता था। अब देखिए, अब्बास की ट्रेजेडी मैंने आपको बताई कि वो ये सब कह के उसके बाद अब्बास के बाजू कलम कर दिए गए और उनका अलम जो है वो गिर गया। जाहिर है कोई उस अलम को उठाने वाला नहीं था, लेकिन हमारे रस्तोगी के प्रोसेशन में काश हिंदुस्तान में होता जन्म अब्बास का। अब देखिए चुटकी भी ले रहा है वो, काश हिंदुस्तान में होता जन्म अब्बास का, बढ़ के हम हिंदू उठा लेते अलम अब्बास का। हम हिंदू जिक्रे सरवर से बिगड़ी को बनाया करते हैं। अब उसमें आगे जो लोग मजाक करते थे कि यार तुम बनियागिरी नहीं भूले तुम, क्योंकि सुनिएगा कि हम हिंदू जिक्र सरवर से बिगड़ी को बनाया करते हैं, हम जिनकी खाया करते हैं उनकी ही गाया करते हैं। हमने कहा ये क्या बात हुई यार, ये तो बिल्कुल तुम रहे बनिया के बनिया। हंसते थे, इस तरह के रिश्ते थे आपस में, लेकिन हमारी मजलिसों में आते थे। तो मरसिए का सिलसिला मैं मॉडर्न पीरियड में जो बड़ा मरसिया गो हुआ है, सब ने, ये एक ट्रेडिशन बन गई हर एक ने, चाहे वो कैफी आज़मी हो, चाहे अली सरदार जाफरी हो, चाहे नियाज हैदर हो, सब ने मरसिए लिखे। फैज़ को ही लिखना पड़ा। लेकिन मरसिए का शायर दरअसल इनमें से जोश मलियाबादी को मैं समझता हूँ
कि लेकिन वो दूसरे तरह का मर्सिया है। वो करबला को एक परचम बना लेते हैं, वो एक दूसरे तरीके से ट्रीट करते हैं। मॉडर्न इडियम में जिंदगी है बरतरे आतिश फिशानी या हुसैन, जिंदगी है बरतरे यानी जिंदगी आग बरसा रही है, आतिश फिशानी या हुसैन आग दुनिया में लगी है, आग पानी या हुसैन। अब ये पानी या हुसैन जो है, इसके पैराडॉक्स से आप महजूज होइए, क्योंकि सारी ट्रेजेडी करबला की पानी की है। 3 दिन पानी बंद कर दिया गया है हुसैन पे। अब ये इस पैराडॉक्स के बारे में आप सोचिए, ये सोचने का मिसरा है ये। खुद पे बाबे तिश्नगी खोलो तो लो नामे हुसैन, जोश करना है। खुद अपने आप पे प्यास का दरवाजा खोलो, प्यास सहो। खुद पे बाबे तिश्नगी खोलो तो लो नामे हुसैन, दोस्त दारे दुश्मना हो लो तो लो नामे हुसैन। ओ भाई तेग के नीचे भी सच बोलो तो लो नामे हुसैन। कहता है जुल्म की तामीर को ढा दो तो लो नामे हुसैन, और शमा से आंधी को चकरा दो तो लो नामे हुसैन। कोई कह दे ये हुकूमत के निगहबानों से, करबला एक अबदी जंग है सुल्तानों से। आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया। Friends, what you have just heard are the words of many great poets. In our estimation, the world's greatest Marsiya writer, Mir Anis. But we wanted to share with you that the Marsiya style of composition influenced many. And I want to recite, मतलब इस recitation के बाद तो ये जुर्रत का काम होगा। बहरहाल, I want to recite to you brief passages composed by a Kashmiri poet who made Lucknow his home, Pandit Brij Narayan Chakbast. Theme वही है, रुखसती, जुदाई, a son leaving home and a mother in mourning. रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राहे वफा की मंजिले अव्वल हुई तमाम. The first port of call, his first duty is over. बाप से विदा हो चुकी है. मंजूर था जो माँ की जियारत का इंतजाम, दामन से अश्क पोंछ के दिल से किया कलाम. इजहारे बेकसी से सितम होगा और भी, देखा हमें उदास तो गम होगा और भी. ये बेटा माँ के बारे में अब सोच रहा है कि अश्क पोंछ करके मैं उनके पास जाऊं. दामन से अश्क पोंछ के दिल से किया कलाम, इजहारे बेकसी से सितम उन पर, सितम होगा और भी, देखा हमें उदास तो गम होगा और भी. बहरहाल वो माँ के पास जाते हैं, एंड आई एम स्किपिंग मेनी बंद्स हियर जस्ट टू गिव यू अ फ्लेवर. माँ के पास जाते हैं और चुपचाप वहाँ खड़े हो जाते हैं. और अब माँ क्या कहती हैं ये सुनिए. रोकर कहा, खामोश खड़े क्यों हो मेरी जान, मैं जानती हूं किस लिए आए हो तुम यहां. सबकी खुशी यही है तू सहरा को हो रवा, लेकिन मैं अपने मुंह से ना हरगिज कहूंगी हां. किस तरह बन में आंख के तारे को भेज दूं, जोगी बना के राज दुलारे को भेज दूं. अब इन बंद में लगेगा कि जैसे इमाम हुसैन की रुखसती का तस्करा हो रहा है. हकीकत में जो पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त ने इतनी खूबसूरती से दिखाया है वो है रामचंद्र जी का बनवास और मां कौशल्या से उनकी जुदाई. यही है
यही है इस मिट्टी की, इस हिंदुस्तान की मिली जुली विरासत। आखिर में, हालांकि जैसे मैंने कहा, सोज सलाम मरसिए के बाद नहीं होते हैं, लेकिन आज हम 2 सोज पेश करना चाहते हैं। ये दोनों सोज बानो की आवाज में है। बानो, वाइफ ऑफ इमाम हुसैन। पहला अवधि में है, in which Bano is mourning the loss of her dearly beloved husband of Hussein. It's in Awadhi. कहे बानो मैं सीस नवाऊं कहाँ, मोरा सैया तुमय का बिसार गयो। Where should I bow my head? Where should I hide my head? My beloved has left me. This source is based on a folk tune. मोरी नाव भंवर बिच डार गयो, आप डूबत डूबत पार भयो। कहें बानो मैं तो दूधन धार नहाए रही, मैं तो पूतन भाग सुहाए रही, मैं तो लाख सिंगार बनाए रही, मोरा साईं सिंगार उजाड़ गयो। कहें बानो मैं तो बीच समुंदर था लई, झोली ममोती समोए रहो, शापन लाल निसार लियो, मुरा मुतियन हार बिथार गयो। कहें बानो केहू देश मदीना में जाए कहो, के रसूल का नाती है खेत रयो। केहू देश मदीना में जाए कहो, के रसूल का नाती
आज बनमा हुसैना बस्यो रे अपन देश उजार गयो कहीं बानो में ओ केहू फातिमा बीबी से और केहू फातिमा बीबी से जाए कहो वाके सारे कुटुंब वाका लूटलिन रखे हुए को चदरिया पठे न दियो मुरा बरी शीस उघार गयो कहीं बानो में शीस नवाऊं कहाँ मोरा सैया तुम का विसार गयो। आपने बरसिए में पानी का तस्करा सुना. Imam Hussein's small army during this battle is cut off from the waters of the Euphrates River by Yazid's forces. और करबला की उस गर्मी में आप तसव्वुर कीजिए कि प्यास से तड़प रहे हैं सब. When they ask for a little bit of water for 6-month-old baby Ali Asghar, what arrives instead is an arrow that pierces his throat. इस सोज में Banu laments the loss of her infant son with very simple words. कहती थी बानो असगर जानी कब तुम घर में आओगे. Based on Rag Mishra Khammaj. कहती थी बानो असगर जानी कब तुम घर में आओगे. कहती थी बानो असगर जानी कब तुम घर में आओगे. दरिया पर से पी कर पानी कब तुम घर में आओगे.
मेरे जानी यूसुफ सानी, कब तुम घर में आओगे, लेकर अपनी शक्ल नुमानी, कब तुम घर में आओगे। सोग में तेरे बेटा मैंने पहनी कफनी काली है, सोग में तेरे बेटा मैंने पहनी कफनी काली है, भूरे बालों वाले आजा, झूला तेरा खाली है। कहती थी बानो असगर जानी। Friends, we've come to the end of this evening, and as is customary, we will end with one noha. Now, a noha is really, it's a popular form, it is group rendition, and it is recited standing up. Normally, a sahib-e-bayaz, the leader holding the verses in his hand, he leads, and the chorus could be of 100 or it could be of 1,000, and it is very hard for us to replicate the energy and the feel of noha recitation on this stage, but we wanted to try and give you a little glimpse of the melodies, the catchiness, and the beat of the noha. And some of you may know that the legendary music director, Naushad Sahab, who was from Lucknow, and a lot of the choruses in his compositions in Bombay were based on noha tunes that he had heard growing up in his cultural tradition. The noha, again, very, very simple words. Sheh kehte the, kyun roti ho batlao sakina, lillah, mere dil ko na tadpao sakina. This is, Sakina is Imam Hussein's youngest daughter, his favorite. And Sakina has lost her baby brother, Ali Asghar. She's lost her beloved chacha, Hazrat Abbas. And she's completely bereft. In this noha, Imam Hussein here, just a father, trying to love his daughter in her hour of grief. A noha. शे कहते थे क्यों रोती हो बतला ओ सकीना, शह कहते थे क्यों रोती हो बतला ओ सकीना, लिल्लाह मेरे दिल को न तड़पा
ओ सकीना शह कहते थे क्यों रोती हो बतला ओ सकीना ऐसा न हो आ जाए कोई तीर इधर भी ऐसा न हो आ जाए कोई तीर इधर भी ठहरो न यहाँ घर को चली जा ओ सकीना शह कहते थे क्यों रोती हो बतला ओ सकीना अब याद न प्यारे अली असगर को करो तुम अब याद न प्यारे अली असगर को करो तुम दिल झूले से मासूम के बहला ओ सकीना शह कहते थे क्यों रोती हो बतला ओ सकीना बानो अली असगर की जुदाई से है मुज़तर बानो अली असगर की जुदाई से है मुज़तर तुम जाके कलेजे से लिपट जा ओ सकीना शह कहते थे क्यों रोती हो बतला ओ सकीना जाने दो मुझे छोड़ दो घोड़े की सुमों को जाने दो मुझे छोड़ दो घोड़े की सुमों को अल्लाह निगहबान बस अब जा ओ सकीना शह कहते थे क्यों रोती हो बतला ओ सकीना Thank you, friends. We've come to the end of the evening, and I want to introduce all those who recited today. The recitation of Soz, Salam, Noha. May I please ask Yusra Naqvi to come on stage. Yusra. Turab Naqvi. Turab, आइए. Askari Naqvi. Tasneem Kausar. The concept and Marsiya recitation, Saeed Naqvi. Naqvi Sahab. Event management today, Elia Naqvi. Elia, can we have you on stage as well? I also want to acknowledge a hidden contribution. My chacha, Saklen Naqvi, better known as Shanne to his fans and friends in Delhi. He could not be with us here today, but he has led the way
in trying to bring these traditions of Muharram out of our Qasbah of Mustafabad and to a wider audience. And of course, for his encyclopedic memory. He is still our go-to person, even when we were rehearsing for this evening's recitation. जब कोई शेर भूल जाते हैं या बंद भूल जाते हैं, तो शंडे को phone किया जाता है. So I want to acknowledge his contribution. Some of the other people we want to thank, of course, the India International Center. Tete, thank you. We miss Premila Ghosh. And Tete, thank you very, very much. The irrepressible Ashok Vajpayee ji, I don't know if he's here today, and the Raza Foundation for having made this program possible. Yash Chandra for designing the program poster, the backdrop slides. A labor of love. Thank you, Yash, wherever you are. Dhawan ji for sound and light. Dharampal ji for the sets in record time. And Sumit Katoch, Suresh Pal, and all the technical staff of the IIC. For the video recordings, we want to thank Saurabh Gupta, Nishant Chauhan, and Revant Reddy. Photographer Vismay Kamte, a lovely team of volunteers, Ghulam, Naila, and others. We are very, very grateful. And the audience, to you most importantly. Thank you so much for being here and for being ये हम सब की विरासत है और इसी मूड में हमने आज आपके सामने ये शाम पेश की है. आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आदाब.